हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी वीकली रैप पॉडकास्ट। बात करें अगर इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह में मार्केट जो है कम वॉल्यूम की वजह से एक रेंज बाउंड रहा है। हालांकि जो सेंसेक्स और निफ्टी है, दोनों इंडाइसेस 1% ऊपर बंद हुए हैं। हालांकि जो हमारा ब्रॉडर मार्केट है वो फ्रंटलाइन इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। लगातार दूसरा ऐसा सप्ताह रहा है जहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप में जो है एक डाइवर्जेंस देखने को मिला है। बात करें एफ की, तो यहाँ पे एफ की बिकवाली लगातार जारी है। FII in the current week have net sold 8,281 crore rupees in the cash market, while DII net bought 10,930 crore rupees. Now, if you talk about the stocks which were in focus for the current week, so they were like Ramki Infra. This company has received a letter of acceptance for 215 crore rupees order from Hyderabad Metropolitan Water Supply Sewage Board, and this was positive for the company in the long term. HG Infra has signed an agreement, for battery energy storage purchase agreement with NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited. So positive for this company in the long term. If you remember friends, PG Electroplast was in focus in the current week. कंपनी ने यहाँ पे वर्लपूल के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और आगे चल करके ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन जो है कंपनी के लिए बनाएंगे वर्लपूल के लिए। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रहा है। जेंसॉल इंजीनियरिंग को यहाँ पे 897 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है NTPC से, तो ये भी कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। पावर मैक प्रोजेक्ट विच इज बेसिकली हैदराबाद बेस्ड EPC कंपनी हैज रिसीव्ड 186 करोड़ रुपीज ऑर्डर फ्रॉम जयप्रकाश पावर in the operation and maintenance segment in Madhya Pradesh. So positive for Power Mac as well in the long term. Nalco has got a coal mining project, or rather we can say the company has signed a lease mining agreement with the government of Odisha for a coal block, and the company expected to enhance its overall coal production capacity to 4 million metric ton per annum. So positive for Nalco in the long term. And finally, Panacea Biotech, if you remember, the company has received a letter of award from UNICEF to supply 115 million doses of polio vaccine for a value of 127 crore rupees. And the company is going to supply this vaccine in the year 2025. So friends, all these companies were in focus. Detail you can refer to our report. Now friends, let us look at the companies who have received the order in the during the week. So first is Newgen Software Technologies. The company has received 19.3 crore rupees of order from international client. So positive for this company in the long term. Western Career has got 8 crore rupees of order from Tata International. Then L&T have received 5,000 to 10,000 crore rupees order from Ministry of Defence. So positive for this company also in the long term. भारत इलेक्ट्रॉनिक को 973 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये भी कंपनी के जो है पॉजिटिव है। उसके अलावा वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़, मफताल इंडस्ट्रीज़, जेंसॉल इंजीनियरिंग, वाटेक वाबक, इन सारी कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं अलग अलग क्लाइंट से। आप हमारा पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। नाउ लेट्स लुक एट दी स्टॉक्स वेयर वी हैव गिवन द रिकमेंडेशन। सो फ्रेंड्स, इस सप्ताह में हमने 2 स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है। लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी पे हमने एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाला हुआ है। 625 रुपये पे हमने इसको रिकमेंड किया है और 857 रुपये का टारगेट प्राइस है। 625 CMP, टारगेट इज 857, सो अपसाइड पोटेंशियल इज नियरली 37%। लूमेक्स बेसिकली एक, आप सब जानते हैं कि एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे हेड एंड टेल लैंप है, एयर इनटेक सिस्टम है, प्लास्टिक टैंक्स हैं, डोर पैनल है, स्विचेस हैं, सेंसर्स हैं। सो एक लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट की। And this company has a big client like M&M, Maruti, Tata Motors, Bajaj Auto. All these companies are the leading OEMs in India, and they are the client for this company. If you talk about why we like this company, so first is जिस कंपनी को जो प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, जो कंटेंट पर व्हीकल है वो बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम में जो है बढ़ेगा। उसके अलावा दिस कंपनी इज बेसिकली इज़ वेरी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन पावर ट्रेन सेगमेंट, सो यहाँ भी उनको फ़ायदा मिलने वाला है। उसके अलावा OEMs के द्वारा जो बिजनेस है पर OEMs वो बढ़ रहा है, तो जो उनके अलग अलग पॉपुलर जो ब्रांड्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं उनके लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाने वाली है, तो ये भी उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है आगे चल करके। तो दीज आर द रीज़न वाई वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू डू वेल इन द फ्यूचर। बात करें परफॉर्मेंस की, तो हमें लगता है कि अगले 3 साल में
अगले 2 साल में जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 50% CAGR से जो है ग्रो करेगा। तो यहाँ पे हम मार्जिन का एक्सपांशन भी देख रहे हैं, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ जो है थोड़ा सा कम है। मतलब सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 27.9% CAGR, बट प्रॉफिट विल ग्रो एट 50% plus CAGR. So because of the margin expansion, we expect the profit to grow much higher than that, and therefore we are saying that one can look at buying this company for long-term investment perspective. फ्रेंड्स, उसके अलावा हमने एक और स्टॉक पर रिकमेंडेशन दिया हुआ है, और वो है एक पिक ऑफ द वीक में, जो कि ई मुद्रा लिमिटेड है। तो यहाँ पे 911 में हमने इसको रिकमेंड किया हुआ, और 1048 यानी 1048 का जो है टारगेट प्राइस है। सो बेसिकली कंपनी जो है एक यूनिक बिजनेस मॉडल है इनका। दिस कंपनी बेसिकली इज द लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी अपना बिजनेस जो है वो बाहर एक्सपांड कर रही है ओवरसीज मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है इनका। कंपनी ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में पार्टनरशिप कर रही है। ऊपर से अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो पिछले 5 सालों में इनका जो सेल्स, एबिटा और पैट है वो लगभग 30% के CAGR से जो है ग्रो हुआ है, और हमें लगता है कि आगे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हमें लगता है ये कंपनी जो है रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वन कैन लुक एट बाइंग ई मुद्रा फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। फ्रेंड्स, ये कुछ कंपनियां जो हमने रिकमेंड किया है इस सप्ताह में। फॉर मोर डिटेल अबाउट आवर रिपोर्ट यू कैन रेफर आवर वीकली रैप रिपोर्ट। इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, जहाँ पे हमने कमोडिटी के प्राइसेस कैप्चर किए हुए हैं। अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं, जो मार्केट ट्रैक करने वाला है, कॉर्पोरेट एक्शन का डेटा है, ये सारे डेटा हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। बिफोर आई रैप अप, आई जस्ट टेल यू दैट नेक्स्ट वीक दिस लॉट ऑफ डेटा इज गोइंग टू कम। So auto sales number for December, GST collection for December, plus FMCG, banks, NBFCs, metal, real estate, all these companies will declare their provisional sales data for the third quarter FY25. So all these data will be in focus, and accordingly the company will also react as these data will come in. So I think ये कुछ focus area रहने वाले हैं next week के लिए। Friends, as we welcome the new year 2025, we extend our heartfelt thanks for your support and wishing you a joy and prosperity in the new year. So friends, this was all about our weekly rap podcast. Thanks for listening, and I wish you all the best for the next week. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.